Good morning, children. This is Vaibhav Kulkarni, TGT Maths, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Usmanabad, Taluka Turzapur. Actually, you might have seen so far so many videos I have prepared on class 9th standard maths, class 10th standard maths. My target is to finish off this 9th standard maths as well as 10th standard maths for the students. And along with that, I have also prepared some videos called as Basic Maths for All, in which so far I have almost completed 20 videos and I will be taking up to 40 videos. So the content of the videos is to help the students who are having the problems in their basics. If the students see those basics and they try to do the problems of 9th and 10th standard, I feel that they will feel 9th and standard maths very easy, because as an experienced teacher from last 26 years and plus some 3 years outside Navodaya, I have come to know some of the difficulties that the student face when they come in 9th and 10th standard. So with that intention, I have prepared the videos for basic maths also. Now this basic maths video can be seen even by 6th standard students, 7th standard students, 8th standard students, 9th standard students and 10th standard students. My channel name, as you all know, Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni. This is my channel name. The purpose of making this channel is to give standard coaching to the students who are suffering a lot because of this corona pandemics. Students are finding it very difficult to get the teachers. Most of the colleges are closed, most of the schools are closed, and in that context, students should be able to do maths. With that noble intention, this channel has been started. So I hope you might have already started seeing my channel. I want that you should subscribe it, share it, and even you can share your comments so that we can have an interactive class through mobile and through my internet, through my YouTube channel, Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni. And again, one good news that I am going to give you all, dear children, is I am also shortly starting this on my Facebook also. So shortly you will be seeing me on the Facebook also. You need to search for my page and then you click on my page and then you will get all the updates on the Facebook also. So dear children, try to understand the noble intention and share with as many people as you can. And you are free to share your views in the comment box. बच्चों, आज हमारा बेसिक मैथ्स फॉर ऑल का डे 23 चल रहा है और उसमें हम बेसिक टॉपिक जो है सर्कल, ये सर्कल टॉपिक इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑलमोस्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th also it is there. So today I want to tell you, let us start from the beginning and then go to the higher level. Today I'll take, what is it, parts of a circle, some parts of a circle. Tomorrow again I'll continue with few more parts of a circle. Then we'll take up the properties of a circle, because all these are quite essential commodities required for you when you are approaching the higher class. So right from 6th standard onwards it is required. So first thing that हमको चाहिए सर्कल के ऊपर, जो पहली बात हमको सर्कल में सीखनी है वो ये है कि सर्कल क्या होता है. देखिए, सर्कल इज अ क्लोज्ड फिगर in which all points in the same plane lie at an equal point from a single point that is called center. इसका मतलब क्या होता है, सर्कल के बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ अ सर्कल, और इसके प्लेन के ऊपर अनेक पॉइंट्स होते हैं. ये सारे सर्कल का मतलब होता है सीरीज ऑफ पॉइंट्स. ये सारे पॉइंट्स हैं, तो ये सारे पॉइंट्स जो है यहाँ से लेके सेंटर से लेके सारे समान दूरी पर होते हैं. आप जितने भी पॉइंट्स आप लोगे, सारे पॉइंट्स इन द प्लेन विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल. ऐसे भी कहीं कुछ किताबों में मैंने पढ़ा है कि सर्कल इज ए क्लोज्ड फिगर विथ नो एजेस, वहाँ पर कोई एज नहीं होता है, ऐसा भी लिखा है. या जैसे ही कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा है कि इट इज़ ए लोकाई ऑफ ए पॉइंट,
विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड फ्रॉम द सेंटर। तो ऐसा भी एक डेफिनेशन, इट इज़ लोकाई ऑफ पॉइंट का मतलब होता है सेट ऑफ पॉइंट्स जो सेंटर से समान दूरी पर है, ऐसा भी डेफिनेशन होता है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट एज सेंटर। नेक्स्ट आता है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का मतलब होता है बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। बाउंड्री ऑफ अ सर्कल मैंने यहाँ लिखा है, देखिए बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। आपने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर क्या करते हैं, एक गोल सी रस्सी लगाते हैं पूरे ग्राउंड के ऊपर, दैट इज़ व्हाट वी कैन से बाउंड्री। वो पूरे स्टेडियम का बाउंड्री है, दैट इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस मीन्स द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। और एक नेक्स्ट पॉइंट आता है रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस का मतलब क्या होता है, देखिए सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक की दूरी जो होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल। द डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द रेडियस इज कॉल्ड एज टू द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स रेडियस इज कॉल्ड एज टू इट्स सर्कमफ्रेंस, नॉट रेडियस, टू इट्स सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड एज, उसके सर्कमफ्रेंस के तरफ की क्या हम उसको बोलते हैं, टू इट्स सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड एज रेडियस। सर एक सर्कल के अंदर कितने रेडियस होते हैं, एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट रेडियस होते हैं। एक रेडियस नहीं होता है, अनेक रेडियस, आप जितने चाहे उतने रेडियस आप बना सकते हो। तो द क्वांटिटी ऑफ रेडियस इन अ सर्कल इज इनफाइनाइट। तो मगर एक बात याद रखना कि एक सर्कल का हमेशा एक ही रेडियस होता है, इट कैन नॉट हैव डिफरेंट रेडियस। मान लीजिए अगर मैंने सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर का बनाया तो ये सारा रेडियस, इसके ऊपर जितने सारे रेडियस होंगे सारे 5 सेंटीमीटर के होंगे। देखिए कभी कभी आप लोग करते हैं, ज्योमेट्री पढ़ते समय आप करते हो ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तब आप क्या करते हो, एक पॉइंट इधर रखते हो और बाद में इसको लेके आप क्या करते हो 5 सेंटीमीटर बनाते हो। सो व्हाट डज इट मीन, सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस का दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ अ सर्कल। एंड ए सर्कल कैन हैव मेनी रेडियाई, उसका रेडियाई बोलते हैं, रेडियस नहीं बोलते, रेडियाई, एंड ऑल द रेडियाई आर इक्वल। नेक्स्ट डेफिनेशन आता है कॉर्ड। कुछ बच्चे इसको गलत पढ़ते हैं, चॉर्ड। चॉर्ड अगर पढ़ रहे हो आप बच्चों तो दैट इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब क्या होता है, सर्कल से लेकर आप कितनी भी सर्कल के ऊपर, सर्कल के अंदर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो उसका एंड पॉइंट सर्कमफ्रेंस के ऊपर एंड होगा, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपकी किताब के अंदर CD एक कॉर्ड है, CD क्या है, एक कॉर्ड है। तो व्हाट इज इट, अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स आर ऑन द सर्कल इज कॉल्ड एज कॉर्ड। व्हाट इज इट, कॉर्ड। अगेन रिपीट विथ मी, मेरे साथ रिपीट कीजिए, कॉर्ड, कॉर्ड, नॉट चॉर्ड, कॉर्ड। उसके बाद नेक्स्ट आता है डायमीटर। डायमीटर का मतलब क्या होता है, द डायमीटर द कॉर्ड दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ अ सर्कल। अगर सर्कल के सेंटर से पास होता है तो उसको हम बोलते हैं डायमीटर। ये सेंटर, सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है और सर्कल को 2 जगह पे टच कर रहा है, सर्कल को 2 जगह पे टच कर रहा है, यानी A पर भी टच कर रहा है, B के ऊपर भी टच कर रहा है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि AB इज द डायमीटर, AB इज द डायमीटर। AB क्या है, डायमीटर है। तो सर रेडियस और डायमीटर के बीच में कुछ रिलेशन है क्या, हाँ। आप ये पूछ सकते हो सर OB भी तो रेडियस है, OA भी तो रेडियस है। हाँ बच्चों, OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है। तो AB क्या है सर, AB क्या है, AB डायमीटर है। सर AB कॉर्ड भी है क्या, हाँ AB कॉर्ड भी है, AB डायमीटर भी है, OA रेडियस भी है, OB रेडियस भी है। अगर सर आप तो कहते हो कि रेडियस दोनों इक्वल होता है तो OA और OB इक्वल होगा, यानी AB जो है इसका डबल होगा। यानी अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये पूरा होगा 10 सेंटीमीटर। सही है मेरी बात। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यस आप जो कह रहे हो वो सही हो।
यानी कहने का मेरा मतलब है कि रेडियस का अगर आप डबल करोगे तो आपको डायमीटर मिलेगा। दैट मीन्स द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड डायमीटर इज हमेशा डायमीटर की लंबाई रेडियस का डबल होता है। ये अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर होगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि रेडियस डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस। क्या बोला जाता है उसको? 2 इंटू रेडियस। सर एक सर्कल के अंदर कितने डायमीटर बन सकते हैं? बहुत डायमीटर बन सकते हैं। यहाँ से ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, जितना चाहो उतना आप डायमीटर बना सकते हो। तो ए सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट डायमीटर, ए सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट रेडियस। सो नेक्स्ट आता है, तो और एक सवाल जो आप पूछ सकते हो मुझे कि सर क्या डायमीटर इज अ कॉर्ड? यस, डायमीटर इज अ कॉर्ड। क्या कॉर्ड इज अ डायमीटर? नो, ऑल द कॉर्ड्स दैट passes through the center are diameters, or I can say all diameters are chords, but all chords are not diameter because they do not pass through the center. They do not pass through the center. Or all diameters are chord because they touch the 2 points of a circle. यानी सारे diameters chord होते हैं क्योंकि वो सर्कल को 2 जगह पे टच करता है। मगर सारे कॉर्ड डायमीटर नहीं होते हैं क्योंकि सारे कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास नहीं होते हैं। तो उम्मीद है आपको डायमीटर और कॉर्ड के बीच का फ़र्क पता चल गया होगा। कॉर्ड, नॉट चॉर्ड, कॉर्ड। रिपीट करो, कॉर्ड। सो सिंपल बच्चों, जो लाइन सर्कल को 2 जगह पे टच करती है और सेंटर से पास होती है उसको डायमीटर कहा जाता है। जो सर्कल को 2 जगह पे टच करता है केवल लाइन, उसको कॉर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट आता है सीकंट। सीकंट का मतलब क्या है? अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। यानी सीकंट देखिए, जैसे EF एक लाइन है, ये सर्कल के से पास थ्रू हो रही है और सर्कल को 2 जगह पे टच कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है सीकंट। तो यहाँ हम ऐसे कहते हैं कि EF इज द सीकंट एट G एंड H। तो हम ऐसे बोलते हैं कि EF इज अ सीकंट एट G एंड H। तो आप बोलोगे सर CD सीकंट है क्या? नहीं, इट शुड पास थ्रू द सर्कल, इट इज विद इन द सर्कल। ये डिफरेंस है कॉर्ड और सीकंट के अंदर। सीकंट में क्या होता है, लाइन पास थ्रू हो जाता है और सर्कल को 2 जगह पे टच करता है, और इस कॉर्ड में क्या होता है, 2 जगह पे केवल टच करता है, 2 जगह पे केवल टच करता है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन आता है आर्क। आर्क क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज आर्क। तो इसका मतलब क्या? डिस्टेंस बिटवीन, देखिए ऐसे ऐसे इस ऑन द सर्कमफ्रेंस के ऊपर ये लाइन जो है वो आर्क कहलाती है। सर यहाँ तो ये वाला आर्क भी है। हाँ, हमने कब मना किया? तो देखिए मान लीजिए इसको हम बोल सकते हैं आर्क IJ। सर इसको क्या कहोगे? इसको भी आर्क IJ कहा जाता है। सर ये तो बड़ा है। हाँ, जो बड़ा है उसको कहा जाता है मेजर आर्क, जो छोटा है उसको क्या कहा जाता है? माइनर आर्क। अब मुझे पता नहीं आप देखने वालों में से कितने लोग मेजर हो, कितने माइनर हो। आपने काफ़ी बार सुना होगा, इलेक्शन में भी कहते हैं कि आप माइनर हो तो आपको वोटिंग का अधिकार नहीं है, आप अगर मेजर हो तो आपको वोटिंग का अधिकार है। तो मेजर का मतलब होता है बड़ा, माइनर का मतलब होता है छोटा। तो वैसी आर्क के अंदर भी छोटा वाला आर्क IJ, बड़ा वाला आर्क IJ, छोटा वाला आर्क को कहा जाता है माइनर आर्क RJ, और बड़े वाले आर्क को कहा जाता है मेजर आर्क IJ। यानी दोनों ही आर्क है, मगर एक छोटा वाला आर्क, एक बड़ा वाला आर्क। आप भी कहते होंगे, घर पर कहते होंगे बड़ी दीदी छोटी दीदी, बड़े भैया छोटे भैया, बड़े अंकल छोटे अंकल, है ना, जो उम्र में बड़े होते हैं। तो वैसे मैथ्स के अंदर भी बड़े नहीं का बड़ा आर्क को हम मेजर आर्क कहते हैं, और छोटे आर्क को हम माइनर आर्क कहते हैं। नेक्स्ट आता है सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट।
तो पार्ट मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल हमने दिया, ये आर्क है और ये कॉर्ड है, ये आर्क है और ये कॉर्ड है। तो आर्क और कॉर्ड के बीच में जो एरिया फंसा हुआ है, इस एरिया को हम सेगमेंट बोलते हैं। द एरिया बाउंडेड बिटवीन अ कॉर्ड एंड अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज सेगमेंट। सर सेगमेंट तो केवल यहाँ नहीं है ना सर, इधर भी है, ये भी तो सेगमेंट है सर। यस, ये भी सेगमेंट है, उसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। यानी जो बड़ा आर्क है जो कॉर्ड के साथ जुड़ रहा है, उसके बीच का क्षेत्रफल जो होगा दैट इज कॉल्ड मेजर आर्क, मेजर सेगमेंट। जो आर्क है माइनर आर्क है और उसको कॉर्ड के बीच में जो फंसा हुआ एरिया है उसको बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब में याद रखिए आप, द एरिया बॉन्डेड बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क और इन द आर्क इज कॉल्ड एज सेगमेंट। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि द एरिया बॉन्डेड बिटवीन द कॉर्ड एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज segment of a circle. There are two segments, minor segments and major segment. अगर मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच में फंसा हुआ एरिया है तो उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। माइनर आर्क और कॉर्ड के बीच में फंसा हुआ एरिया है तो उसको बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट। तो बच्चों सर्कल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ आते हैं और भी कुछ डेफिनेशंस हैं। तो वो सारे डेफिनेशंस के साथ हम डे 24 में आपके सामने हाजिर होंगे। और भी हमें बहुत कुछ पढ़ना है, बेसिक ज्योमेट्री पढ़नी है, बेसिक अलजेब्रा हम पढ़ चुके हैं, तो बेसिक अरिथमेटिक भी आपको हमने समझाया है। तो सारे बेसिक बातें आपको हम बताएंगे, बेसिक मेंसुरेशन भी हम आपको बताएंगे। तो हम आपको बिल्कुल मतलब छठी कक्षा से लेके 9वीं या 10वीं कक्षा तक पहुंचने के लिए आपका सारा रास्ता हम जो है वो क्लियर करके आपको देंगे। और आपको अभी से अनाउंसमेंट हम कर दें कि ये सर्कल टॉपिक के ऊपर लगभग या 3 पीरियड या 4 पीरियड तक ये सर्कल टॉपिक चलेगा। और ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम आपको वादा करते हैं कि एक क्विज़ कॉम्पिटिशन हम कंडक्ट करेंगे, मैथ्स क्विज़ इसके ऊपर, और क्विज़ ऑन सर्कल्स इस टॉपिक से ये सारी बातें हम आपको उसमें पूछने जाने वाले। कल मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत सारे बच्चों ने क्विज़ में भाग लिया और कुछ बच्चों ने तो इवन व्हाट्सएप पे मुझे अपने जो सर्टिफिकेट्स मिले हैं क्विज़ के वो भी भेजा है। अच्छी बात है बच्चों, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, कीप इट अप। और ये सीखना मत भूलिए, केवल सर्टिफिकेट के लिए मत पढ़िए, आपका नॉलेज भी आप बढ़ाइए।